اچھا جی، اگلا شاعر ہے جو آپ کے اس میں نصاب میں شامل کیا گیا وہ ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خنسا ان کا لقب ہے اور انہوں نے اپنے بھائی صخر کی رسا میں مرثیہ نگاری، یعنی وہ مر گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ شاعرہ کا نام ہے خنسا۔ یہ سیدہ تمادر بنت عمرو، وہ محترمہ تمادر بنت عمرو ہیں۔ ہاں جی، اپنے بھائی صخر کی رسا میں شاعرہ ہیں جناب محترمہ تمادر بنت عمرو ان کا نام ہے۔ ایک معزز گھرانے میں پرورش پائی اور ان کو خنسا کا لقب دیا گیا، یعنی جنگلی گائے، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ان کے بھائی صخر جو تھا وہ وفات پا گیا کسی مارکے میں، تو وہ اس کے کھو جانے کی وجہ سے ان پر جنون طاری ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا تھا یہ جنون میں آ گئی ہیں اس کے کھو جانے کی وجہ سے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بہت سے شعر کہے جو کہ دکھ اور درد سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ خنسا جو ہیں وہ اس غرض کی، یعنی یہ غرض جو شاعری کی ہے، یہ قسم جو شاعری کی ہے رسا، اس کی وہ لیڈر بن گئی، اس میں بہت ممتاز اور نمایاں ہو گئی فی العصر الجاہلی، جاہلی دور میں، یعنی جاہلی دور میں جتنی بھی شاعری کی گئی اس کی رائدہ جو تھی وہ اس کی نمائندہ شاعر بن گئی تھی یہ اس شاعری کی اس صنف کی۔ صنف کون سی ہے؟ رسا یعنی مرثیہ نگاری۔ خنسا رضی اللہ عنہا نے اسلام کا زمانہ پایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار بھی پیش کیے، اپنے قصائد کہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند کیا، اور جو جنگ قادسیہ ہے، قادسیہ کی جنگ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اس میں آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ جو جنگ قادسیہ تھی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، اس میں آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ بس جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے جزا و فضا کرنے کی بجائے، گھبرانے کی بجائے، رونے دھونے کی بجائے کیا کہا؟ آپ نے کہا الحمدللہ الذی شرف بقتل، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے سرفراز فرمایا، شہادت کا شرف بخشا ہے مجھے، ان کی بچوں کی شہادت کا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ان کے ساتھ اپنی رحمت کے سائے میں اکٹھا کرے گا۔ مکانہ حاضر موقف من الخنسا دلیل، اور خنسا رضی اللہ عنہ کا یہ موقف، ان کا یہ قول، ان کے دل میں اسلام کی جو تاثیر تھی اس پر مضبوط دلیل ہے۔ ان کے دل میں اسلام کی جو تاثیر تھی اس کی مضبوط دلیل، یعنی ان کے دل میں اسلام اتنا جاگزی تھا کہ 4 بیٹے، جوان بیٹوں کی شہادت ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے گھبرانے کی بجائے، جزا و فضا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ ان کے دل میں اسلام اتنا پختگی سے راسخ ہو چکا تھا، پختہ ہو چکا تھا۔ اور آپ نے حضرت معاویہ کے دور خلافت کے اوائل میں، یعنی ان کی خلافت کا جو شروع کا زمانہ تھا اس میں آپ نے وفات پائی۔ درج الناس آپ کے مراسی میں سے، مرثیہ نگاری میں سے ایک ہے، آپ کے جو بھائی صخر کے بارے میں آپ نے کی، اور اس میں انہوں نے آپ کے اس بھائی کے فضل و کرم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں وَإِنَّ صَخْرًا، اور بے شک صخر، لوالینا، البتہ ہمارا والی ہے، وسیدنا، اور ہمارا سردار ہے۔ بے شک صخر ہمارا سرپرست اور ہمارا سردار ہے۔ وَإِنَّ صَخْرًا، اور بے شک صخر، اذا نشتو، جب ہم قحط زدہ ہوتے تھے، لنحارو، تو وہ بہت زیادہ اونٹ ذبح کرنے والا ہوتا تھا۔ نحار کہتے ہیں نہر، اونٹ کو جو ذبح کرنے کا طریقہ اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نشتو، جب ہم قحط سالی میں ہوتے تھے، ہم بھوکے ہوتے تھے، ہم پر قحط آ جاتا تھا، تو صخر کیا کرتا تھا کہ وہ بہت زیادہ اونٹ ذبح کرتا تھا۔ وَإِنَّ صَخْرًا لَمِقْدَامٌ، اور بے شک صخر بہت پیش قدمی کرنے والا تھا۔ اذا رکبو، جب وہ سوار ہوں، یعنی لوگ جب سوار ہوتے تھے تو ان صخر سب میں آگے آگے ہوتا تھا، آگے آگے بڑھتا تھا، پیش قدمی کرتا تھا۔ وَإِنَّ صَخْرًا، اور بے شک صخر، اذا جاعوا، جب لوگ بھوکے ہوتے تھے، لَأَقْوَارُ، تو وہ کونچے کاٹ ڈالنے والا ہوتا تھا، اونٹوں کی ٹانگیں کاٹ ڈالنے والا ہوتا تھا، اور جب وہ بہت بھوکے ہوتے تو وہ اپنے اونٹوں کی
टांगे काट देने वाला होता था। वाइन्ना सखरन, और बेशक सखर, लता तमु, अलबत्ता रहनुमाई हासिल करते हैं, अलहुदातु रहनुमा भी उससे, और बेशक सखर है कि रहनुमा लोग भी उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। लता तमु, कान्ना, गोया कि वो अलमुन, अलमुन पहाड़ है, फी रासिही, जिसकी चोटी पर नारुन, आग जल रही हो, आग रोशन हो। गोया कि वो पहाड़ है जिसकी चोटी पर आग जल रही हो। वाइन्ना सखरन, और बेशक सखर, हम ना ध्यान से गिरना जाए। लता अतम्मु, अलबत्ता पैरवी करते हैं, इक्तदा करते हैं, अलहुदातु बिही, अलहुदातु रहनुमा बिही उसकी, कान्ना, गोया कि वो अलमुन एक पहाड़ है, फी रासिही, उसके जिसकी चोटी, मेरा सर को कहते हैं, सर चुके हमारी जिस्म का बुलंद हिस्सा होता है सबसे ऊंचा, इसलिए पहाड़ की भी चोटी बुलंद होती है, इसलिए यहाँ पे चोटी आएगा, जिसकी चोटी पर नारू, आग हो। हम मालू, बहुत ज्यादा उठाने वाला, अलवियातिन, झंडों को, हब्बातिन, बहुत ज्यादा उतरने वाला, औदियातिन, वादियों में, शहादु, बहुत ज्यादा हाजिर होने वाला, अंदियातिन, अंदियातिन कहते हैं क्लब्स को, महफिलों को, और जो नामुनकिद होती थी मजलिसें, मजलिसों में बहुत ज्यादा हाजिर होने वाला, लिल जैशी, कौम का, जर्रारू, बहादुर शख्स था, बहुत ज्यादा। जी बेटे, नहीं बेटे, जो भैया साथ शाहादू अंदियातिन, बहुत ज्यादा हाजिर होने वाला, मजलिसों में, लिल जैशी, लश्कर को, लश्कर का, जर्रारू, सबसे बहादुर शख्स होता था, फी जौफी, पेट में, अंदर, रमसिन, कबर के, मुकीमिन, मुकीम है। बेटा इस तरह करो ना भाई, वो चुप कर दो, बेबी को पकड़ो आप ना इसको ले जाओ बेटा यहाँ मेरे पास से, ये लैपटॉप खराब करता है, उसके ऊपर हाथ मारता है, जाओ बेटे। फी जौफी रमसिन, एक पुरानी कब्र में, मुकीमुन, मुकीम है, कद कदम मनाहू, लपेट लिया है उसको, या कह सकते हैं कदम मत हूँ, उसको लपेट रखा ही, फी रमसी, उसकी कब्र में, या गले लगा लिया उसको उसकी कब्र में, मुकमत रात, उन बड़ी बड़ी चट्टानों ने, व अहजारू, और पत्थरों ने, उसको बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों ने उसकी कब्र में से अपने नीचे ले लिया है। और ये जो आपने पहले भी इनके हालात के बारे में पढ़ा कि हजरत खलसा जो है वो, उन्होंने अपने भाई सखर, जो इनका भाई था, बहुत ये कबीले का सरदार था, बहुत बहादुर और जंगजू शख्स था, इसकी बहुत ज्यादा मर्सिया निगारी की। जब ये शहीद हो गया, जब मारा गया जंग में, तो इन्होंने उसकी कमी को इतना महसूस किया कि इन पर जुनून की सी कैफियत तारी हो रही थी, उसकी वजह से इनकी आंखों की बिनाई कम हो गई थी, रो रो कर अपने भाई पर। तो तब ये बात थी कि इन्होंने, जब ये इस्लाम ले आई तो इनसे जब पूछा गया कि आप इतना क्यों रोती थी अपने भाई सखर के बारे में, जबकि अपने 4 बेटे शहीद होने पर ऐसे इन्होंने जजा फजा नहीं की, क्योंकि तब ये इस्लाम नहीं लाई हुई थी, और ये कहती हैं कि मुझे इस बात का भी डर है कि वो मुसलमान होकर नहीं मरा था, तो वो आग में जाने की वजह से, इस वजह से ये इस्लाम लाने के बाद भी अपने भाई के बारे में परेशान रही थी। तो शायरा कहती हैं कि सखर हमारा सरदार था, सखर हमारा सरप्रस्त था। कैसा सरप्रस्त था, कैसा सरदार था कि जब लोग कहत ज़दा होते थे, जब कहत आता था तो क्या होता था कि गल्ला अनाज कुछ नहीं होता था, तो ये अपने ऊंट लोगों की खातिर कुर्बान कर दिया करता था। ऐसा सखी शख्स था, ऐसा अपने कबीले को समेट कर चलने वाला होता था, इसको अपने कबीले की फिक्र होती थी, कबीले वालों का पता होता था कि उनको किस तरह से इसमें लेकर चलना है। तो शायर कहता है क्या, बुक दे दो। सखर जो था वो जब लोग कहत में आ जाते थे, कहत ज़दा हो जाते थे, बेटे जब लोग कहत में आ जाते थे तो वो
नहर कर देता था ऊँटों को, यानी ऊँटों को काट डालता था, अपने ऊँट ज़िबा कर देता था लोगों की खातिर के लोग परेशानी में ना रहें, मेरे कबीले वाले अमन और सलामती से रहें। फिर शायर कहता है सर्दियों में खास तौर पर ये बात हो रही थी कि सर्दियों के मौसम में जब कहत आता था उस वक्त ये ऐसे करता था। उसको पता होता था कि खाने पीने की चीजें खत्म हैं और अब लोग जो है वो परेशानी के आलम में जा रहे हैं, तो वो लोगों को उनकी परेशानी से बचाने के लिए सखावत और फयाजी करता था। खुसूसन जब सर्दियों का मौसम आता था उस वक्त कहत आ जाता जब कभी, तो सख्र जो है वो अपने ऊँट ही हमारी खातिर हमारे खुराक का ख्याल रखने के लिए वो अपने ऊँट ज़िबा कर डालता था। अब चूंकि वो यहाँ नहीं रहा इस दुनिया में, तो हमें उसकी ये फयाजियाँ, उसकी ये सखावतें, उसके वो अपनी कौम का ख्याल रखना, वो चीज़ें हमारे उसकी यादें हमारे जहन में आती हैं, हमारे जहन में घूमती हैं और हमें तड़पाती हैं। सखरन लमिकदाम, और बेशक सखर अलबत्ता आगे बढ़ने वाला होता था जब लोग सवार होते, यानी जब कबीला कहीं सफर करता तो सबसे आगे आगे बढ़कर पेशकदमी करने वाला सखर होता था, क्योंकि वो कबीले का सरदार था और वो खूब जानता था कि सरदारी कैसे की जाती है। और वो कहते हैं कि सखर जो था, जब लोग भूखे हो जाते थे, लोगों को भूख लगती थी, तो फिर वो अपनी ऊँटों की टांगे काट डालता था, यानी ऊँटों को एक इस तरह से भी तरीका होता ना, उनकी पोंछें काट डाल के फिर उनको किया जाता है। जी बाजी बेटे अपने घर बेटे अपने घर। वो कहता है कि हर मामले में बढ़ने वाला था, बहुत बहादुर शख्स था। आज जो पेशकदमी करता है, जो शख्स आगे आगे जा रहा होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो बाकी लोगों से बहादुर है, वो आगे चल रहा है कि आगे कोई भी जो मसला पेश आएगा सबसे पहले उसी को पेश आएगा। तो शख्स बहादुर था, जंगजू शख्स था। जब लोग कबीले वाले सवार होकर कहीं निकलते थे तो वो उन सब की लीडरशिप वही करता था, उनकी क़यादत करता था और आगे आगे बढ़कर आगे आगे जाता था। और जब फिर लोग किसी जगह पड़ाव करते और जब वहां पर उनको भूख तंग करती, उनके पास सामान खत्म हो जाता, गल्ला अनाज सब कुछ खत्म हो जाता, तो अपने ऊँटों को ज़िबा कर देता, वो ऊँटों को कुर्बान कर देता अपने लोगों की खातिर। वो लोगों को भूख में मुब्तला नहीं देख सकता था। फिर कहती है माइना सखरन लतातम्मुल हुदातु बिही, और बेशक सखर तो ऐसा है कि जो रहनुमा है वो भी उससे उसकी क़यादत करते। कहता है जो लोग खुद रहनुमा होते हैं वो भी उससे रहनुमाई लेते हैं, यानी वो सरदारों का सरदार है, वो लीडरों का लीडर है। सखर सखर जो है वो लीडरों का लीडर था, कि जो लीडर भी थे वो भी उसको देख देख के उसकी इक्तदा करते थे। इक्तदा का मतलब होता है उसके पीछे पीछे पाँव रखते थे, जैसे जैसे वो करता था वैसे वैसे वो करते थे। उनकी भी रहनुमाई, रहनुमाओं की भी रहनुमाई करने वाला होता था। और वो इस तरह था जैसे कि वो एक पहाड़ हो जिसकी चोटी पर आग जल रही हो। पहाड़ की चोटी पर आग जलने से मुराद क्या है कि जब पहले लोग सफर किया करते थे, रातों को अंधेरा होता था और वो जब पहाड़ों में रहते थे वो लोग, अरब लोग, तो पहाड़ की चोटी पर जब आग जल रही होती थी उससे मुराद होती थी कि गोया यहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है या यहाँ पर कोई ऐसी सहूलत है जिससे हमें को रहनुमाई मिल सकती है। रात के अंधेरे में जब सफर हम कर रहे हैं तो यहाँ कोई मौजूद है जो हमारी रहनुमाई करेगा। उस आग से ये पता चलता था कि वहां वो आग जला दी जाती थी कि जाने वाले वहां से रहनुमाई हासिल कर ले, क्योंकि आग की रोशनी भी हो जाती है, एक ये वजह है। दूसरा ये कि वहां की किसी की मौजूदगी का पता चलता था कि गोया यहाँ पर कोई हमें खा पका कर देने वाला भी होगा, कुछ खिलाएगा भी और कुछ हमारी रहनुमाई भी करेगा रास्ते के बारे में, या अगर ठहरना हो तो यहाँ पे कोई मौजूद होगा। तो कहते हैं कि हमारा जो सखर था वो ऐसा शख्स था कि वो चोटी में आग जैसे जल रही हो इस पहाड़ की माने था, कि ऊंचा पहाड़ का मतलब बुलंद शख्स था। एक ये भी इससे मुराद दी जा सकती है, और ये भी कि वो रहनुमाई करने में बहुत आगे होता था, यहाँ तक कि जो रहनुमा लोग थे वो भी उससे रहनुमाई हासिल करते थे, उसकी पैरवी करके उसके पीछे पीछे चलते थे। और जो भटके हुए लोग होते थे, रास्ता भूल जाने वाले होते थे, उनको भी वो राह दिखाता था। हम माल वलवियतिन, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, हम माल, हब्बात, शहाद, जर्रार, अक्कार, नहार, ये सारे जो लफ्ज हैं उसने जो इस्तेमाल किए हैं शायरा ने, ये हैं मुबालगे का सीगा। जैसे हम अल्लाह ताला के नाम के बारे में पढ़ते हैं ना गफ्फार, ये उसी वजन पे है, फ़आल के वजन पे।
ये उसके वजन पे आता है, फ़आल के वजन पे। और अल्लाह ताला के बारे में भी था ना, फ़आलुल लिमा युरीद, कि वो जो चाहता है वो करने वाला है, बहुत करने वाला। इसमें मुबालगे का मानी पाया जाता है, बहुत ज्यादा कसरत से किसी चीज का मौजूद होना। जैसे अल्लाह का नाम है गफ्फार, वहाब बहुत ज्यादा अता करने वाला, गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला, ठीक है, रज़ाक बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला। तो इसी तरह शायरा भी अपने भाई को कह रही कि बहुत ज्यादा उठाने वाला होता था। अलवियतिन, अलवियतिन झंडों को, झंडे की जमा है। झंडा उठाने वाला शख्स कौन होता है? झंडा वो शख्स उठाता है जो पूरे लश्कर में सबसे बहादुर समझा जाता है, क्योंकि और मजबूत शख्स होता है, क्योंकि जो झंडा उठाने वाला होता है वो सबसे आगे होता है। और जब किसी कौम का, जब किसी लश्कर का झंडा नीचे हो जाए, समझे कि उसको शिकस्त हो गई। तो झंडा जब तक ऊपर रहता है, वो कौम जो होती है, वो जब तक झंडा ऊपर रहता है उस कौम को फतह हासिल रहती है। यानी वो कौम अपना झंडा सरने को जब तक नहीं होता तो वो अपनी शिकस्त नहीं मानती, वो कौम, वो लश्कर। तो कहती है कि ये झंडों को उठाने वाला होता था, बहुत ज्यादा उठाने वाला, यानी हर जंग में बढ़ के आगे झंडा उठाता था। बहुत बड़ा, बहुत बहादुर शख्स था, बहुत मजबूत शख्स था, अपनी पूरी कौम की इज्जत को बचाने वाला। हब्बात औदियत, इन वादियों में उतरने वाला, यानी वादियों में उतरने वाला, कि वादी में उतरने के लिए भी बहादुरी शर्त होती है, कि जैसी भी ऊंची नीची जगह होती, जैसी भी वादियां होती, वहां पर ये शख्स जो था वो उतर जाया करता था और चला जाया करता था आगे बढ़कर। कोई इसको किसी चीज का डर नहीं होता था, कोई किसी इंसान का, किसी जानवर का, हर किसी से ये मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता था। फिर शहादवंदियत, इन मजलिसों में बहुत ज्यादा हाजिर होने वाला, यानी जो शख्स कहते हैं ना पंचायती, ये मतलब है इसका शहादवंदियत, कि ये बड़ा फैसले करने वाला होता था। जब बड़ी बड़ी मजलिसें हुआ करती थी तो उनमें बढ़ चढ़ कर हाजिर होता था और अपने लश्कर और अपने कबीले की तरफ से ये उनकी नुमाइंदगी करता था। और ये अपने कबीले का, अपने लश्कर का बहादुर तरीन शख्स था। फिर कहती है कि इतनी खूबियां होने के बावजूद, ये सब कुछ होने के बावजूद, अब हम क्या है कि हम उसकी क़यादत से महरूम हो गए हैं, हम उसके सरदारी से महरूम हो गए हैं। अब उस शख्स का क्या आलम हो गया कि वो एक पुरानी कब्र में, वो सीधा कब्र में मुकीम है, वहां रहता है। और वहां पर उसको बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों ने, जो कि सख्त पत्थर हैं, उन्होंने अब उसकी कब्र में उसे अपने नीचे ले रखा है। शायरा रोते हुए और मरसिया निगारी करते हुए कहती है कि ये शख्स वो शख्स था कि जिसमें इतनी ज्यादा खूबियां थी, जिसके अंदर इतने ज्यादा भलाइयाँ थी, सिफात थी, बहादुर था, रोशन मीनार था, आगे बढ़ बढ़कर लोगों की रहनुमाई करने वाला था, लोगों को भूख से, कहत से बचाने वाला शख्स था। अब इसका क्या है, कहती है कि जिंदगी भर वो आला महारतों का हामिल रहा, लेकिन अब वो एक पुरानी कब्र में क़याम पजीर है। जो जिंदगी में बड़ी बड़ी चट्टानों का मुकाबला कर लेता था, अब वो चट्टानें इसको अपने नीचे छुपाए हुए हैं, अपने नीचे लिए हुए हैं। एक बेनिशान सी कब्र है जिसके अंदर ये है। और अब लोग जो इसकी बहादुरी के किस्से कहते थे, अब लोग जो इसकी बहादुरी से फैज़याब होते थे, वो लोग इसकी कब्र को देखते हैं जो कि बेनिशान कब्र है। अब ये कब्र जो उसकी आखिरी आरामगाह है, ये भी सब लोगों के लिए एक निशाने इबरत बनी हुई है, निशाने दर्स बनी हुई है। ये थी हजरत खनसा, इन्होंने अपने भाई के बारे में मरसिया निगारी करते हुए कहा। बाकी इंशाल्लाह हम अगले में देखेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।